Hello everyone. Today our topic is trigonometric functions. Third chapter, trigonometric functions. Take a unit circle. We will take a unit circle. Let it is a unit circle. X, x dash, y and y dash. Unit circle means a circle which is of radius 1 unit. It is a circle of radius 1 unit. Its center is at the origin. Let it is point A. It is a unit circle, then its length is of 1 unit. A की coordinates 1, 0. Let it is point B, it is point C and it is point D is here. तो B के coordinates 0, x is 0 and y is 1. C के coordinates -1, 0, x की वैल्यू -1, y is 0 और D के coordinates x is 0 and y is -1. It is a unit circle of radius 1 unit. It is point A. तो let it is the initial ray. इसमें रोटेशन हुआ और हम आ गए एंटी क्लॉकवाइज. let this length is of x units. लेंथ ऑफ आर्क क्या है? x यूनिट्स है और लेट इट इज पॉइंट P. तो स्टूडेंट्स यहां पर जो एंगल बनेगा दैट इज ऑफ x रेडियंस. एंगल AOP जो आएगा वो क्या बनेगा? x रेडियंस. तो हेयर एंगल AOP इज इक्वल टू x हमारे पास आया. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं A, B हमारे पास है. पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स A, B. ड्रॉ परपेंडिकुलर PM. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया x एक्सिस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स यहां पर राइट ट्राइंगल PMO हमारे पास है. तो टेकिंग राइट ट्राइंगल PMO. व्हाट इज cos थीटा? तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस इज हियर? P के कोऑर्डिनेट्स है A, B. x कोऑर्डिनेट A और y कोऑर्डिनेट B. इट मींस यहां से और यहां तक OM A के इक्वल आएगा क्योंकि P का x कोऑर्डिनेट है A के इक्वल और y कोऑर्डिनेट क्या है B. तो फिर PM कितना आ जाएगा? B के इक्वल. PM is of length B units. तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज बेस? A. व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? It is hypotenuse. It is a unit circle and it is its radius that is of 1 unit. तो what is hypotenuse? 1. तो cos x is equal to आ गया A के. cos x is equal to A. What is sin x? Sin x is perpendicular over hypotenuse. What is perpendicular? B units upon what is hypotenuse? 1. तो sin x आ गया स्टूडेंट यहां से B के इक्वल. तो sin x is equal to B and cos x is equal to A. तो P के कोऑर्डिनेट्स थे A, B. A means cos x और B means sin x. तो स्टूडेंट्स पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट A था वो cos x के इक्वल आया और y कोऑर्डिनेट है B वो आया sin x के इक्वल. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा को. अब कोई भी पॉइंट लें, जैसे पॉइंट A हमने लिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1, 0. तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है cos थीटा को और 0 शो करेगा sin थीटा को. सेम हियर cos की वैल्यू 0 और sin की वैल्यू 1. यहां पर cos की वैल्यू -1 और sin की वैल्यू 0. यहां पर cos की वैल्यू 0, sin की वैल्यू -1. तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा को. नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा को. ऑल्सो with the help of Pythagoras theorem
using Pythagoras theorem, using Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? OP square is equal to OM square plus PM square. What is OP? It is the radius of unit circle, means 1 square is equal to, what is OM? That is of A units, means A square, plus PM, that is of B units, it is B square, means we have A square plus B square is equal to 1. What is A? A means cos x, means it is cos square x plus sin square x is equal to 1. It is very important trigonometric identity. Sin square x plus cos square x is equal to 1. Now divide. Equation first by sin square x, then we get cos square x upon sin square x, cos square x upon sin square x plus sin square x upon sin square x is equal to 1 upon sin square x. Then it is cos upon sin, cot square x plus it is 1 by sin, it is cosec. So that is, we can say cosec square x is equal to 1 plus cot square x. It is also very important trigonometric identity. Also divide equation first by cos square x, then we get cos square x upon cos square x, cos square x upon cos square x plus sin square x upon cos square x is equal to 1 by cos square x. Cos square x by cos square x, it is 1. Sin upon cos, it is tan. Tan square x is equal to 1 upon cos, it is sec square x. So that is sec square x is equal to 1 plus tan square x. It is also an important trigonometric identity. Hence we can say sin square x plus cos square x is equal to 1. Sec square x is equal to 1 plus tan square x. Cosec square x is equal to 1 plus cot square x. These are very, very important trigonometric identities. Now we have angle AOP is equal to x radians. और स्टूडेंट्स यहाँ से और यहाँ तक व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज 2 पाई. यहाँ से और यहाँ तक जो एंगल बनेगा दैट इज कंप्लीट एंगल, दैट इज ऑफ 2 पाई रेडियंस. नाउ 2 पाई इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2. मींस इट इज ऑफ 90 डिग्री, it is of 90, it is of 90, it is also of 90 degree. So what is angle AOB? So here angle AOB means this angle is of pi by 2 means 90 degree, pi radians means 180 degree. Angle AOC, angle AOC is equal to pi means ये वाला जो एंगल बनेगा एंगल AOC that is of 180 degree means pi. Angle AOD means this angle. Angle AOD is equal to 3 pi by 2. Pi means 180. Pi by 2 means 90 multiplied by 3. It is of 270 degree.
and again angle AO, let and angle AO, let point B is here. Rotation was anti-clockwise. After complete rotation, let we have point B is here. So what is angle AOB? Is equal to 2 pi. That means it is of 360 degree. These angles pi by 2. यहाँ पर जो एंगल बनेगा that is of pi by 2. Pi 3 pi by 2 and here angle is of 2 pi after complete rotation. If there is no rotation, the angle is of 0 degree. After one rotation, the angle is of 2 pi means 360 degree. Students, pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, all these are integral multiples of pi by 2. Then these angles are called quadrantal angles. Such angles are called quadrantal angles. Now, students, if there is no rotation, मान लीजिए कोई रोटेशन नहीं होता है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा? दैट इज ऑफ 0 डिग्री. इफ एंगल इज ऑफ 0 डिग्री, इट मींस हम कहां पर होंगे? पॉइंट ए पर. और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1,0. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0. इफ देयर इज नो रोटेशन, द एंगल इज ऑफ 0 डिग्री. जैसे यहां पर cos x is equal to a था, sin x is equal to b था. If this angle is of x radians, like this, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा. ऐसे यहाँ पर पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 0. मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट a का x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट. तो ये हुआ cos थीटा और ये हुआ sin थीटा. इट इज द वैल्यू ऑफ cos x, इट इज द वैल्यू ऑफ sin x. अब x की वैल्यू क्या है यहाँ पर? मींस थीटा यहाँ पर क्या है? 0 डिग्री. तो ये हुआ cos x. इफ x इज इक्वल टू 0, 4.a cos x इज इक्वल टू 1 एंड sin x इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर x क्या था? इट इज ऑफ 0 डिग्री. तो एट angle of 0 degree, what is cos theta? means cos 0 is equal to 1. क्योंकि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को. अब क्योंकि यहाँ पर जो थीटा था यानी एंगल था वो क्या है? इट इज ऑफ 0 डिग्री. इफ देयर इज नो रोटेशन, नो एंगल इज फॉर्म्ड, मींस द एंगल इज ऑफ 0 डिग्री. Now cos 0 is equal to 1 and sin 0 is equal to 0. If angle, or we can say theta is equal to pi by 2. If theta is equal to pi by 2 means it was the initial ray. इसमें रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज. कितना? pi by 2 के इक्वल. तो स्टूडेंट्स हम आ गए पॉइंट B पर. तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? 0,1. पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 0,1. इट इज x कोऑर्डिनेट एंड इट इज y कोऑर्डिनेट. तो पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा. अब cos थीटा की वैल्यू क्या है? 0. और यहां पर थीटा क्या है? pi by 2. cos x is equal to 1, cos x is equal to 0 and sin x is equal to 1. और x क्या है यहाँ पर? pi by 2. तो what is cos pi by 2? it is 0 and it is sin की वैल्यू यानी sin pi by 2 is equal to 1. आफ्टर रोटेशन हम आ गए यहां से यहां तक. तो यहां से यहां तक हाफ सर्कल कंप्लीट हो गया. मींस जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? पाई रेडियंस का. तो एट एंगल इज इक्वल टू पाई और यू कैन से 180 डिग्री. तो एट x इज इक्वल टू पाई. तो यहां पर जो पॉइंट C हमने लिया हुआ है, C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1,0. तो बेटा ये हुआ cos थीटा की वैल्यू और ये है sin थीटा की वैल्यू. और पॉइंट C पर
थीटा की वैल्यू क्या है पाई, तो व्हाट इज कॉस पाई, cos pi it is -1 और sin pi is equal to 0 if angle आफ्टर रोटेशन हम आ गए यहां पर, तो यहां पर जो एंगल है वो क्या है 3π/2, तो d के कोऑर्डिनेट्स 0, -1, तो ये हुआ cos थीटा की वैल्यू और ये है sin थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा 0 sin थीटा -1, थीटा मींस एंगल क्या है यहाँ पर 3π/2 तो एंगल इज इक्वल टू 3π/2, तो व्हाट इज cos 3π/2 इट इज 0 एंड व्हाट इज sin 3π/2 इट इज -1 आफ्टर कंप्लीट रोटेशन। जो एंगल हमारे पास आएगा दैट इज ऑफ 2π, यहां से और यहां तक रोटेशन कंप्लीट हुआ, अगेन हम पॉइंट ए पर आ गए, तो यहां पर जो एंगल बनेगा आफ्टर कंप्लीट रोटेशन दैट इज ऑफ 2π, और कहां पर हम पहुंच गए दोबारा से पॉइंट ए पर, तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 0, यानी cos थीटा 1 और sin थीटा 0, और cos थीटा क्या है यहाँ पर मींस थीटा की वैल्यू 2π, तो व्हाट इज cos 2π दैट इज 1 एंड what is sin 2π that is 0, so these are the values of cos x and sin x at these values 0, π/2, π, 3π/2 and 2π, तो स्टूडेंट्स इनकी हेल्प से sin x की वैल्यू हमारे पास है और cos x की वैल्यू हमारे पास है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास sin और cos आ गए, इनकी हेल्प से tan, cot, sec और कोसेक फंक्शंस की वैल्यू हम इन्हीं पॉइंट्स पर वेरी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट बी इज कॉमन, पॉइंट बी 2 बार आ गया, पॉइंट बी यहां पर भी ले लिया था और यहां पर भी आ गया है, तो लेट इट इज पॉइंट क्यू, इट इज पॉइंट क्यू आफ्टर रोटेशन, देन इट इज एंगल AOQ दैट इज ऑफ 2π, AOB भी यहां भी आ गया था और यहां पर भी आ गया है, तो ऐसे मान लेते हैं Q पॉइंट हमारे पास है, तो व्हाट इज एंगल AOQ दैट इज इक्वल टू 2π, नोट डाउन दिस। नाउ स्टूडेंट्स x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या आएगी 0, वी नो ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट is equal to 0, on x axis y coordinate is equal to 0, और किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा, इट मींस x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट कैसा आएगा 0, y कोऑर्डिनेट मींस वी कैन से sin थीटा इज इक्वल टू 0, और वी कैन से on x एक्सिस sin x is equal to 0, x एक्सिस पर जो sin थीटा आएगा वो आएगा 0, अब स्टूडेंट्स x एक्सिस पर जो एंगल्स होंगे वो कौन से होंगे, x एक्सिस पर जो एंगल्स हैं दैट इज ऑफ 0 डिग्री, देन इट इज पाई, यहां से यहां तक पाई आ गया, फिर यहां से यहां तक 2π, जो एंगल x एक्सिस पर होंगे इफ देयर इज नो रोटेशन एंगल इज ऑफ 0 डिग्री, देन पाई हम कौन से एंगल से ले रहे हैं ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट यानी sin थीटा आएगा 0, अब x की वैल्यू क्या क्या होंगी यहां पर 0 डिग्री, देन पाई, फिर अगेन हम यहां पर आ गए इट इज ऑफ 2π, देन अगेन 2π प्लस पाई 3π, फिर 2 रोटेशन कंप्लीट हो गए, देन इट इज 4π, then it is 5π and so on, means 0π, 0 को हम क्या कह सकते हैं 0π, means 0π, 1π, 2π, 3π, 4π, 5π, like this we can say up to nπ, n belongs to an integer, n belongs to an integer, why it is integer, क्योंकि हमने रोटेशन लिया था एंटी क्लॉकवाइज, जब रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज तो
तो एंगल जो बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, इट इज ऑफ 0 डिग्री, देन इट इज माइनस पाई। क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में एंगल बनेगा माइनस में, तो माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, माइनस 5 पाई, लाइक दिस। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन एक्स एट दीज एंगल्स? तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, मींस वी कैन से साइन एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? n पाई। तो साइन n पाई इज इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू n इंटीजर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। साइन n पाई इज इक्वल टू 0, n बिलोंग्स टू n इंटीजर। अब लेते हैं y एक्सिस। ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0, ऑन x एक्सिस, ऑन y एक्सिस x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। और स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट करेगा? cos थीटा को। तो x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0 और यू कैन से किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट किसे रिप्रेजेंट करेगा? cos थीटा को। तो cos x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का यानी cos थीटा क्या आएगा? 0। अब x इज इक्वल टू क्या होगा? x कहां पर है? y एक्सिस पर। तो y एक्सिस के एंगल्स क्या होंगे? y एक्सिस यानी इस लाइन पर जो एंगल्स हैं दैट इज पाई बाई 2, देन 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। तो यहां से और यहां तक फिर पाई ऐड हो गया, देन इट इज 5 पाई बाई 2, देन 7 पाई बाई 2। तो कौन से एंगल्स हुए? पाई बाई 2 आया, फिर y एक्सिस पर 3 पाई बाई 2 आ रहा है, 3 पाई बाई 2 के बाद फिर 5 पाई बाई 2 आएगा, फिर 7 पाई बाई 2 आएगा एंड सो ऑन। मींस पाई बाई 2 में 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से, 5 से, 7 से, लाइक दिस। मींस ऑल दीज आर ऑड multiples of, these are odd multiples of pi by 2, means 1 pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2। अब स्टूडेंट्स ये थे इन केस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन होता है क्लॉकवाइज, तो उस केस में जो एंगल आएगा वो आएगा माइनस का, माइनस पाई बाई 2, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो यू कैन से x is equal to odd multiple of pi by 2, 2n plus 1। n आप कोई भी इंटीजर लें तो 2n plus 1 जो आएगा वो ऑड नंबर आएगा, where n belongs to n इंटीजर। तो it implies that cos odd multiple of pi by 2 किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल, if n belongs to n इंटीजर। स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो साइन की वैल्यू 0 कहां पर आएगी? n पाई पर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। साइन 0 कहां पर आएगा? n पाई पर। n पाई मींस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, लाइक दिस। और cos की वैल्यू 0 कहां पर आएगी? और मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। तो इनकी हेल्प से हम साइन x और cos x की हेल्प से अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगेन वी विल टेक ए यूनिट सर्कल, दैट इज ए सर्कल of radius 1 unit. We will take a circle of radius 1 unit, x, x dash, it is y and it is y dash. It is a unit circle. It is its center at the origin. So students, let it is point A. It is the initial ray. मान लीजिए इसमें रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, यानी हम कितना चले, लेंथ ऑफ आर्क इज ऑफ x यूनिट्स। तो किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो एंगल हमारे पास बनेगा दैट इज ऑफ x रेडियंस। तो पॉइंट P मान लेते हैं यहाँ पर। तो P के कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए a, b आई।
इतना ही रोटेशन हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम सेम रोटेशन यानी सेम लेंथ आते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेट दिस आर्क इज ऑफ लेंथ x यूनिट्स, बट किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्टूडेंट्स जो एंगल यहां पर बनेगा वो एंगल बनेगा नेगेटिव यानी -x। इफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज पॉजिटिव, रोटेशन इज क्लॉकवाइज द एंगल इज नेगेटिव। तो पॉइंट Q इसे मान लेते हैं। तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x इज पॉजिटिव हियर एंड y इज नेगेटिव। तो Q हमारे पास कितना आया? a, -b। इट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट, रोटेशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज, लेंथ ऑफ आर्क इज x यूनिट्स, देन इट इज x रेडियंस, लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, देन इट इज -x रेडियंस। तो व्हाट इज एंगल AOP? एंगल हियर, what is angle AOP is equal to x and angle AOQ, स्टूडेंट्स ये कितना आएगा? -x। AOP is equal to x रेडियंस, AOQ is equal to -x। तो what is कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P A, B? तो ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो a मींस cos x is equal to a and sin x is equal to b। cos x क्या आएगा? a के इक्वल और sin x आएगा b के इक्वल, क्योंकि किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा sin थीटा को। अब आते हैं यहां पर, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a और y कोऑर्डिनेट क्या है? -b। अब यहां पर जो एंगल है ऊपर था x का और नीचे है -x, तो cos थीटा की वैल्यू a और sin थीटा की वैल्यू क्या है? -b। अब थीटा क्या है? इन दिस केस इट इज ऑफ -x रेडियंस। तो cos ऑफ -x, cos थीटा इज इक्वल टू a एंड sin theta is equal to -b। cos theta is equal to a, sin theta is equal to -b। और 4 पॉइंट Q जो थीटा है वो क्या है? -x। तो cos ऑफ -x is equal to a और एक इसके इक्वल था cos x के इक्वल। तो sin ऑफ -x is equal to -b, माइनस एज इट इज, और b क्या था? sin x। तो therefore cos ऑफ -x किसके इक्वल आया? cos x के इक्वल। cos ऑफ -x किसके इक्वल आ गया? cos x के इक्वल। और sin ऑफ -x ये किसके इक्वल आया? माइनस sin x के इक्वल। तो cos ऑफ -x cos x आया, sin ऑफ -x माइनस sin x आया। These are also very important results. cos of -x is equal to cos x and sin of -x is equal to minus sin x. तो sin cos, what is tan? Tan of -x, अब tan x is equal to sin x by cos x, तो इसे हम लिख सकते हैं sin of -x upon cos of -x. What is sin of -x? Minus sin x. What is cos of -x? It is cos x. तो minus sin x by cos x, it is tan x. तो what is tan of -x? It is minus tan x. Now cot of -x. What is cot of -x? It may be written as 1 upon tan of -x. Cot of -x is equal to 1 upon tan of -x. तो 1 upon, what is tan of -x? Minus tan x, minus as it is 1 upon tan, it is minus cot x. तो cot of -x is equal to minus cot x. Now
sec of minus x. It may be written as 1 upon cos of minus x. तो 1 upon what is cos of minus x? Cos of minus x is cos x. तो 1 by cos x आ गया स्टूडेंट्स sec x. तो sec of minus x is equal to sec x. And cosec of minus x is equal to 1 upon sine of minus x. तो 1 upon what is sine of minus x? Minus sine x. तो minus as it is, what is 1 upon sine? Cosec. तो cosec of minus x is equal to minus cosec x. So these are also some important results. What is cos of minus x? Cos x. Sine of minus sine. Sine of minus x. Minus sine x. Tan of minus x. Minus tan x. Cot of minus x. Minus cot x. Sec of minus x. Sec x. Cosec of minus x. Minus cosec x. It is very simple to learn all of these. केवल cos और cos का रेसिप्रोकल sec ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव हैं. cos ऑफ माइनस एक्स cos x और sec ऑफ माइनस एक्स sec x. नोट डाउन दिस. Now another concept. It is a unit circle, that is a circle of radius 1 unit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो कंप्लीट रोटेशन हुआ 0 से 2 पाई, तो यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास हैं. इट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकंड, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या आएगा? 0 से और 90 के बीच में. फर्स्ट क्वाड्रेंट. व्हाट इज क्वाड्रेंट फर्स्ट? इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 देन द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. यदि हमारा एंगल 0 और 90 के बीच में आ रहा है. व्हाट इज सेकंड क्वाड्रेंट? इफ थीटा इज greater than, it is of angle 0 degree, it is pi by 2, pi 3 pi by 2 and it is 2 pi. If theta is greater than pi by 2 less than pi, then the angle lies in second quadrant. Third quadrant, if theta is greater than pi 180 से greater हो और 270 से कम हो, लेस देन 3 पाई बाई 2. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज ग्रेटर देन 270 बट लेस देन 360. थीटा इज ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 बट लेस देन 2 पाई. तो दीज आर 4 क्वाड्रेंट्स. क्वाड्रेंट फर्स्ट, क्वाड्रेंट सेकेंड, थर्ड एंड इट इज फोर्थ. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी पॉइंट हम लें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लिया जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव आएगा और y भी पॉजिटिव आएगा. फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आप लें तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव आएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लेते हैं तो x नेगेटिव और y नेगेटिव आएगा. फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y आएगा नेगेटिव. ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यूज हमारे पास होंगी. अब यहाँ पर ये हमने पढ़ा था, किसी भी पॉइंट को आप लें तो किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को. यदि हम आते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पर आए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आप लीजिए
तो वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और साइन कोऑर्डिनेट भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। और किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा को और वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉस थीटा आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और जो साइन थीटा आएगा वो भी कैसा आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा यानी x कोऑर्डिनेट, sin थीटा यानी y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव एंड sin थीटा इज आल्सो पॉजिटिव। तो sin cos व्हाट इज tan थीटा, तो tan थीटा को ले सकते हैं स्टूडेंट sin अपॉन cos, और sin थीटा कैसा था, पॉजिटिव, cos थीटा भी कैसा था, पॉजिटिव, तो tan थीटा भी कैसा आया, ये भी पॉजिटिव आया। cot थीटा, cot इज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव, और sin थीटा भी कैसा है, पॉजिटिव, तो cot थीटा भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। sec थीटा 1 अपॉन cos, तो 1 अपॉन cos थीटा इज पॉजिटिव, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कोसेक थीटा यानी 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन थीटा पॉजिटिव, तो कोसेक थीटा भी कैसा आया, पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव आया। इट मींस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, all trigonometric functions are positive. Now take second quadrant. और स्टूडेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस टाइप के होंगे, x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। और x का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, cos थीटा, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा, तो cos x आया नेगेटिव और sin x आया पॉजिटिव। sin x का मतलब y कोऑर्डिनेट, तो स्टूडेंट्स ये कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा पॉजिटिव होता है और cos थीटा होता है नेगेटिव। तो tan थीटा यानी tan x हमारे पास क्या आ जाएगा, tan x इज sin x अपॉन cos x। अब sin x कैसा है, पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos x कैसा है, नेगेटिव, तो प्लस माइनस इट इज माइनस, तो tan x हुआ नेगेटिव, तो tan x नेगेटिव है तो cot x भी नेगेटिव आएगा। tan x नेगेटिव देन cot x इज नेगेटिव, sec x, तो स्टूडेंट्स cos नेगेटिव तो sec x इज आल्सो नेगेटिव, cosec x, if sin x is positive then cosec x is also positive। तो स्टूडेंट्स सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव है और cosec x पॉजिटिव है। जो यहाँ पर बेसिक फंक्शन है वो क्या है, sin x, और cosec x इसका है रेसिप्रोकल। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हुआ, फर्स्ट में क्या था, ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में क्या है, साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक एक्स, ये पॉजिटिव है। देन क्वाड्रेंट थर्ड, नाउ थर्ड क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट थर्ड, x is negative, y is negative, x means cos theta, y means sin theta। इन थर्ड क्वाड्रेंट cos भी नेगेटिव है और sin भी नेगेटिव है। cos थीटा भी कैसा हुआ, नेगेटिव, और sin थीटा भी कैसा हुआ, नेगेटिव। तो cos x नेगेटिव, sin x नेगेटिव, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा इज नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव इट इज पॉजिटिव। तो tan थीटा कैसा हो गया, पॉजिटिव। cot थीटा कैसा आएगा, इफ tan थीटा इज पॉजिटिव देन cot थीटा विल बी
ऑल्सो पॉजिटिव, सेक थीटा। अब कॉस थीटा कैसा है, नेगेटिव, तो सेक थीटा भी नेगेटिव आएगा। कोसेक थीटा, साइन थीटा इज नेगेटिव, देन कोसेक थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहां पर जो पॉजिटिव आए वो कौन से आए, टेन और कॉट, बोथ आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। टेन थीटा, थर्ड में कौन से आए, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो स्टूडेंट्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कैसे होंगे, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। x का मतलब क्या होता है, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट cos थीटा को और y कोऑर्डिनेट sin थीटा को रिप्रेजेंट करेगा। तो cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, cos थीटा कैसा है, पॉजिटिव, और sin थीटा कैसा है, नेगेटिव। तो sin नेगेटिव, cos पॉजिटिव, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा नेगेटिव और cos थीटा पॉजिटिव, तो माइनस प्लस, इट इज माइनस, तो tan थीटा आया नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स tan थीटा नेगेटिव है तो cot थीटा भी नेगेटिव आएगा। sec थीटा, cos थीटा पॉजिटिव, तो sec थीटा पॉजिटिव आएगा। cosec थीटा, sin थीटा इज नेगेटिव, cosec थीटा इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहां पर पॉजिटिव कौन से आए, cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और इसका रेसिप्रोकल sec थीटा, दीज आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो स्टूडेंट्स इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्वाड्रेंट वाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव और कोसेक एक्स पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। अब इसे याद करना बहुत आसान है, ऑल पॉजिटिव, यहां से हम ए ले लेते हैं, ऑल पॉजिटिव से ए लिया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव थे। अब जो बेसिक फंक्शन है वो कौन सा है हमारे पास, साइन एक्स, तो यहां से ले लिया एस हमने। थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन और कॉट, तो यहां पर जो बेसिक फंक्शन है वो क्या है, टेन, तो टेन से टी लिया और टेन का रेसिप्रोकल क्या था, कॉट था। यहां पर cos थीटा पॉजिटिव है और sec थीटा इसका रेसिप्रोकल था। तो बेसिक फंक्शन हमारे पास कौन सा हुआ, cos, तो यहां से हम क्या ले लेते हैं c। तो ऑल पॉजिटिव से a हमने लिया, sin x पॉजिटिव, cosec x पॉजिटिव, यहां से s, यहां से t और यहां से c। तो वी कैन से a मींस आफ्टर, S means school, T means to और C means college। स्टूडेंट्स ऐसा ही होता है, स्कूल से हम कॉलेज में जाते हैं, देन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर से ए हमारे पास आया, क्वाड्रेंट वाइज हमें याद करना है। आफ्टर से ए हमने लिया, स्कूल का मतलब S, टू का मतलब टी और कॉलेज का मतलब सी। अब ए मींस ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन, क्योंकि बेसिक फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन है, तो साइन और कोसेक। टी का मतलब टेन और कॉट, सी का मतलब कॉस और सेक, ये पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और यू कैन से ऐड शुगर टू कॉफी, इससे भी हम लर्न कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, या फिर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। नोट डाउन दिस।
Now exercise 3.2. Find the values of other trigonometric functions. First question, cos x is equal to -1/2. X lies in third quadrant. Cos x की वैल्यू क्या दे रखी है? -1/2. Then find the values of other 5 trigonometric functions. तो cos x -1/2 है. तो we know that sin square x plus cos square x is equal to 1. तो students, sin square x plus what is the value of cos x? -1/2. तो -1/2 its square is equal to 1. तो sin square x plus 1/4 is equal to 1. तो sin square x is equal to 1 minus 1/4. 4 1 जा 4 minus 1. 3/4. तो students, what is sin x? Sin x is sin square x है 3/4. तो sin x क्या आएगा? प्लस माइनस √3/2 प्लस माइनस √3/2. अब यहाँ पर x कहाँ पे लाई कर रहा था? x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो सिंस x lies in third quadrant, तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x कैसा था? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन x था नेगेटिव. आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है. तो थर्ड में टेन और कॉट होंगे पॉजिटिव और बाकी सारे नेगेटिव. तो साइन x क्या आया? -√3/2. तो साइन x की वैल्यू -√3/2. तो साइन cos देन tan. साइन x -√3/2. cos x ऑलरेडी हमारे पास था. तो व्हाट इज tan x? tan x इज sin x अपॉन cos x. sin x -√3/2 -√3/2. cos x इज -1/2. तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इट इज √3. तो व्हाट इज cot x? cot x इज 1/tan x और tan x क्या था? √3. तो cot x आ जाएगा 1/√3. तो sin cos tan cot sec x. sec x इज 1/cos x. अब cos x क्या था? -1/2. तो इसका रेसिप्रोकल आ गया -2 एंड cosec x इज 1/sin x और sin x की वैल्यू क्या थी? -√3/2. तो इसका रेसिप्रोकल -2/√3. These are the values of other 5 trigonometric functions if cos x is equal to -1/2. Next question, third sum. Third sum, cot x is equal to 3/4. Cot x is equal to 3/4. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. X lies in third quadrant. तो cot x is equal to 3/4 है. तो we know that cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. तो 1 plus cot x 3/4 and its square. तो 1 plus 9/16. 16 1 जा 16 plus 9 25/16. तो व्हाट इज cosec x? तो cosec x आया. cosec square x is 25/16. then it is plus minus 5/4. अब x कहां पे लाई कर रहा था? x lies in थर्ड क्वाड्रेंट. तो स्टूडेंट्स थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज. आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड में टेन और कॉट होंगे पॉजिटिव, तो कोसेक एक्स कैसा आएगा, नेगेटिव। तो कोसेक एक्स इज इक्वल टू -5/4। तो स्टूडेंट्स कोसेक एक्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं साइन एक्स। तो साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स का रेसिप्रोकल मीन्स -4/5। तो साइन एक्स आया -4/5। तो साइन एक्स की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कॉस एक्स। वी नो दैट कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस it is -4/5 whole square is equal to 1। तो cos square x plus 16/25 is equal to 1। तो cos square x is equal to -1 minus 16/25। तो 25 into 1 25 minus 16 9/25। तो cos x कितना आ गया, ±3/5। तो x कहां पे लाई कर रहा था, थर्ड क्वाड्रेंट में था। तो थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे। तो cos x कितना आ गया, -3/5। तो cos x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास sin x आ गया, cos x आ गया। तो 10x हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज 10x? 10x cot x हमें दिया हुआ था। तो cot x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, यानी 1/cot x। ये था 3/4, देन इट इज 4/3। देन sin x हमारे पास है, cos x भी है, 10x cot x। व्हाट इज sec x? तो sec x इज इक्वल टू 1/cos x। और cos x क्या था, माइनस का 3/5, देन इट इज -5/3। तो देयरफॉर व्हाट इज sin x? sin x इज -4/5, cos x -3/5, tan x इज 4/3, cot x ऑलरेडी हमारे पास था, sin cos tan cot sec x इज -5/3। और cosec x कितना आ गया, cosec x -5/4। तो these are the values of other 5 trigonometric functions। Now next questions, find the values of trigonometric functions from question number 6 to 10. What is question number 6? Find the value of sin 765 degree। sin 765। Question number 6, sin 765 डिग्री। तो साइन, स्टूडेंट्स इसे हम लिख सकते हैं 360 मल्टीप्लाई बाई 2, इट इज 720 प्लस 45। 360 मल्टीप्लाई बाई 2 0 π/2 पाई 3π/2 इट इज 2π। 2π मीन्स इट इज 360। तो स्टूडेंट्स रोटेशन हुआ यहां से, आफ्टर वन रोटेशन इट इज 360, अगेन रोटेशन इट इज 720। तो 720 प्लस 45, तो हम होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 720 आफ्टर 2 रोटेशंस इट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 360। 360 का मतलब क्या है, 1 रोटेशन मल्टीप्लाई बाई 2 रोटेशंस देन प्लस 45। तो हम कहां पर होंगे, हम होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इज इक्वल टू साइन
45. So what is sine 45? That is 1 upon under root 2. It is the value of sine 765. तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 720 प्लस 45. अब 720 मीन्स हम यहाँ पर आ गए 720 यहाँ पर आ गए प्लस 45 तो हम होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव. एंड व्हाट इज साइन 45? इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 2. क्वेश्चन नंबर 8 10 19 पाई बाई 3. तो 10 3 19 पाई बाई 3 तो 3 से डिवाइड करें 6 पाई प्लस पाई बाई 3 3 6 18 18 पाई प्लस पाई इट इज 19 पाई बाई 3. तो 6 पाई मीन्स आफ्टर वन रोटेशन इट इज 2 पाई then it is 4 pi then it is 6 pi. तो 6 पाई प्लस पाई बाई 3. अगेन हम कहां पर होंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो स्टूडेंट्स ये आ गया 10 पाई बाई 3. 6 पाई मीन्स 3 रोटेशंस आर कंप्लीट. तो 6 पाई 3 रोटेशन के बाद अगेन हम यहां पर आ गए. इसमें प्लस पाई बाई 3 करें तो हम होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में. मीन्स 10 पाई बाई 3. 10 pi by 3 means 1060. What is the value of 1060? It is under root 3. It is the value of 10 19 pi by 3. Now question number 10 cot minus 15 pi by 4. So students it is cot of minus theta. It is cot of माइनस थीटा. इट इज माइनस कॉट थीटा. प्लस में कौन से होते हैं? कॉस और सेक. तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इट इज माइनस कॉट 15 पाई बाई 4. तो माइनस एज इट इज कॉट ऑफ इट मे बी रिटन एज 4 पाई माइनस पाई बाई 4. 4 पाई माइनस पाई बाई 4. 4 4 जा 16 16 पाई माइनस पाई इट इज 15 पाई बाई 4. तो माइनस साइन एज इट इज कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4. तो किस क्वाड्रेंट में हम होंगे? इट इज 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 और यहां पर आ गया 2 पाई 4 पाई माइनस. तो यहां पर था स्टूडेंट्स 2 पाई आफ्टर वन रोटेशन देन इट इज 4 पाई. तो 4 पाई पर हम यहां आ गए 4 पाई माइनस पाई बाई 4. तो 4 पाई है यहां पर माइनस करेंगे तो हम होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में. 4 पाई माइनस पाई बाई 4 इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव. तो माइनस कॉट पाई बाई 4. कॉट 4 पाई माइनस पाई बाई 4. तो माइनस साइन एज इट इज 4 पाई माइनस मीन्स 4 पाई का मतलब यहां पर माइनस पाई बाई 4. तो हम आ गए यहां पर इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है? नेगेटिव. तो माइनस कॉट पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस इट इज कॉट पाई बाई 4 देन इट इज 1. इट इज द वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ माइनस 15 पाई बाई 4. Now you can solve remaining questions of exercise 3.2.